الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا والصلاة والسلام علی فتحیات والاکرام وعلی من ارسلہ شاہد ومبشر ونذیرا وداعی اللہ بإذنہ والسراج منیرا صاحب کعبہ قوسین ولی فی الدارین امام القبلتین شمس المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطلب العلم من المہد الى اللحد. مل کر بآواز بلند تر سکتا اجازت ہے جی نوکری کا آغاز کیا. آپ حضرات کے سامنے میں حقیر نے آقا نامدار فخر موجودات سرکار مدینہ آمنہ کے لال عبداللہ کے راج دلارے ابو طالب کے پالے ہوئے خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بیان فرمائیں. توجہ میری جانب رکھیں تاکہ میں اپنی بات آپ تک پہنچا سکوں. پیغمبر اسلام نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد. علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی گود. آپ سلام. علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی گود. انسان پیدا ہوا تو پیدا ہوتے ہی انسان نے جو عمل سیکھا اس کائنات میں آنے کے بعد جو پہلا عمل سیکھا وہ رونا سیکھا. میں کسی شیعہ سنی یا کسی خاص مکتبہ فکر کے بچے کی بات نہیں کر رہا. کوئی بھی انسان کا بچہ انسانی بچہ جب اس کائنات میں آتا ہے تو وہ جو سب سے پہلا عمل سیکھتا ہے وہ رونا سیکھتا ہے. اور قرآن فرما رہا ہے واللہ اخرجکم من بیوت امہاتکم لا تعلمون شیئا. اے حضرت انسان جب تم پیدا ہوئے تو تمہیں شے کا علم بھی نہ تھا. جب تم پیدا ہوئے تو تمہیں شے کا علم بھی نہ تھا. یعنی قرآن نے بتا دیا انسان پیدائشی طور پہ جاہل ہے. جو سیکھتا ہے کائنات میں آ کے سیکھتا ہے. انسان قرآن کے مطابق جاہل پیدا ہوا اور جو سیکھا کائنات میں آ کے سیکھا. اور انسان کا بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ سب سے پہلا عمل جو سیکھتا ہے وہ رونا سیکھتا ہے. یعنی انسانی اس جاہل بچے نے پڑھی لکھی انسانیت کو سمجھا دیا کہ کائنات میں آ کے جینا وہی جانتا ہے جو رونا جانتا ہے. سلامت رہے. کائنات میں جینے کا حق اسے ہے جو رونا جانتا ہے. اور اگر انسان اپنی اس تخلیق کے بعد والے عمل کو سمجھے تو وہ کسی بھی رونے والے کو برا نہ کہے. توجہ میری جان. پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا؟ علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی گود. بچہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد اس نے سیکھا، سیکھتے سیکھتے جوان ہوا،
जवानी से बुढ़ापे की तरफ गया, इतना सीखा कि इस इंसान ने पानी में मछली की तरह तैरना सीखा, हवाओं में परिंदों की तरह उड़ना सीखा, जमीन को नाकाबिले रहायश समझ के चांद पे डेरे डालने। इतना कुछ सीखने के बाद ये इंसान इंसानों की तरह जमीन पे चलना नहीं आता। जब भी इंसान जमीन पे चलता है तो अकड़ के चलता है। मौला ने फरमाया जब चलो आंखें नीचे, सीना चौड़ा हो, सर बुलंद, आंखें नीची हो मां की शराफत पता चले, सर बुलंद हो तो बाप की इस्ताहारत का पता चले। इंसान बुढ़ापे की तरफ गया। इंसान जब मौत की मंजिल पे आया ना, तो मैं अपने तमाम बरादरान इस्लाम से एक सवाल करना चाहता हूं कि पैगंबर इस्लाम ने फरमाया है कि इल्म हासिल करो मां की गोद से कब्र की गोद तक। मां की गोद से तो सब कुछ सीखा। अब कोई ऐसी कौम भी है जो अपने मुर्दे के लिए कब्र में इंतजाम करे? ऐसी कौम भी है? आशिक़े रसूल तो वही होगा। आशिक़े रसूल सुन्नत पैगंबर पे अमल करने वाले को कहते हैं। और पैगंबर इस्लाम ने कहा मां की गोद से कब्र की गोद तक। तो मैं पूछना चाहता हूं कि कोई मक्तबा फिक्र जो अपने मुर्दे के लिए स्कूल का इंतजाम करके बैठा हो, सिवाय मौलिया ने हैदर करार के कोई भी नहीं जो अपने मुर्दे को कब्र में लिटाता है और उसके शानों को हिला हिला के कहता है सुन और समझ, तेरा पहला इमाम अली है। तेरा पहला इमाम अली है। विलायत अली इब्ने अबी तालिब इस कदर जरूरी कि कब्र में मुर्दे को भी याद दिलाना पड़ता है। मिसाल दूं आप कि उस्ताद है, वो सारा साल बच्चे को पढ़ाता और बच्चे को कहे बेटा ये सबक याद ना करो, ये इम्तिहान में नहीं है। बच्चा उस्ताद की मान लेता है, वो सवाल याद नहीं करता। जब कमरा इम्तिहान में जाता है वही उस्ताद पूछता है बेटा वो सवाल याद किया, सारे सवाल याद किए। तो बच्चा यही कहेगा कि उस्ताद मोहतरम पूरा साल कहते रहे ये आता नहीं, इसकी तवज्जो ना दो, ये पेपर में नहीं आता, इम्तिहान में नहीं आता। मौलवी भी ऐसे ही है जैसे वो उस्ताद है। पूरी जिंदगी मौलवी कहता है विलायत अली नहीं है, विलायत अली जरूरी नहीं है, इसको कर लो तो भी ठीक है, ना करो तो भी ठीक है। और मुझे तवज्जो मेरी जानब रखे, वही बंदा जब मरता है और कब्र में जाता है तो वो मौलवी साहब आते हैं और उससे शाने हिला हिला के कहते हैं कि तुम हम इस गवाहियों पे जुदा हुआ है अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह व अन्ना अली अमीर अल मोमिनीन व अन्ना अली हसन इब्ने अली इमामी वल हुसैन इब्ने अली इमामी। जब पूरी जिंदगी जिंदा है तो एक गवाही कबूल नहीं, और जब मर जाता है तो 14 को गवाह बनाता। जिंदगी में एक की गवाही कबूल नहीं, तो जब मर जाता है तो 14 को गवाह बनाता। अमीर अल मोमिनीन जनाब कंबर के साथ जा रहे थे। चलते चलते जनाब कंबर एक जगह पर रुक गए। तवज्जो मेरी जान रखें, जनाब कंबर एक जगह पे रुक गए। लामा साहब आगे, आप तवज्जो में बताएं। जनाब कंबर जा रहे, जाते जाते रुक गए। अमीर अल मोमिनीन ने देखा कंबर पीछे खड़े हुए। कंबर क्यों खड़े हुए? का मौला कुरान की तिलावत सुन रहा। कोई बंदा है जो कुरान की तिलावत कर रहा है और खूबसूरत अंदाज में कर रहा है। जैसे इसने कहा ना मौला कोई बंदा है तिलावत कर रहा है और बड़े खूबसूरत अंदाज में कर रहा है। मुस्कुरा के मेरे इमाम ने फरमाया कंबर ये बंदा जहन्नुम में जाएगा। अल्लाह जाने में कहां पढ़ा कि ये बंदा जहन्नुम में जाएगा। मौला कुरान देखना इबादत, पढ़ना इबादत, छूना इबादत। मौला वो इबादत कर रहा है, जहन्नुम में कैसे जाएगा? मेरे इमाम ने मुस्कुरा के कहा कसम है उस खुदा की कि जिसका कब्जा कुदरत में मेरे अली की जान है। कंबर मैंने इसकी आवाज तीसरी मर्तबा सुनी। सर इसे थोड़ा ठीक
कंबर, मैंने इसकी आवाज आज तीसरी मर्तबा सुनी। कमौला 2 मर्तबा पहले कब सुनी? का जब यौम अलस्त अल्लाह ने अपनी वहदानियत को मनवाया, उस वक्त मैंने अपनी इसकी आवाज सुनी। इसने खुदा की वहदानियत की गवाही दी। फिर अल्लाह ने तमाम मखलूक के सामने रसूल की रिसालत को रखा, मैंने इसकी आवाज सुनी। फिर जब अल्लाह ने मेरी विलायत को रखा तो कंबर मैंने इसकी आवाज नहीं सुनी। और जो मेरी गवाही ना दे वो जन्नत जाना दूर, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूं। क्या बात है यार, वो जन्नत जाना दूर, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकते। यहाँ पे मैं एक जुमला कहूंगा अपने उस्ताद मोहतरम बाबा सैयद रियाज हुसैन शाह रतवाल। वो कहा करते थे कि इंसान मोमिन है, उसका चेहरा देखना ही इबादत, उसका मुंह चूमना भी इबादत। क्या बात है जी, क्या बात है। वही मोमन 5 मिनट बाद मर जाता है तो नजस हो जाता है। अब उसको हाथ लगाओगे, अगर आप नमाज पढ़ोगे तो नमाज बातिल, मुर्दा मोमिन को हाथ लगाया तो नमाज बातिल, जिंदा को हाथ लगाया तो सवाब। ये मुर्दा को हाथ लगा के नमाज बातिल क्यों हो रही? कि इसमें रूह नहीं, बहुत अच्छे, रूह नहीं। जब रूह निकल जाती है तो जिस्म हो जाता है नजस, रूह निकल जाए तो जिस्म हो जाता है नजस। इसी तरह पैगंबर इस्लाम ने फरमाया था, या अली तू इबादतों की रूह है, और अगर अली को इबादतों से निकाल दिया जाए, नमाज भी हराम है, रोजा भी हराम। क्या बात है, सलामत रहे। क्या बात है जी। बस होगी मेरी, तबरक को एक जुमला मुसाहिब। मस्जिद नबवी के मिंबर पे कायनात का रसूल तशरीफ फरमा थे। पैगंबर इस्लाम ने अली को आवाज दी कि या अली मेरे करीब हो। मौला अली गए, पैगंबर इस्लाम ने अली की दाढ़ी को चूमना शुरू किया कि या रसूल अल्लाह क्या हो? मेरा मौला फरमाते हैं, या अली मेरे बाद तेरी इस दाढ़ी को खून से खिजाब किया जाए। अल्लाह आपकी आवाज़ों पे रहम करे। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, या अली मेरे बाद तेरी दाढ़ी को खून से खिजाब किया जाएगा। वक्त बदला, हालात बदले। कूफा के मिंबर पे अली इब्ने अबी तालिब थे और मजमे में हुसैन बैठे हुए थे। पैगंबर इस्लाम का जानशीन रोने लगा। हुसैन घबरा के बाबा के पास आए। कहा बाबा क्या हुआ? कहा हुसैन एक दिन था कि पैगंबर इस्लाम ने मेरी दाढ़ी को चूमा और चूम के कहा था कि या अली मेरे बाद तेरी दाढ़ी को खून से खिजाब किया जाएगा। हुसैन तेरी दाढ़ी इसलिए चूम रहा हूं कि मेरी दाढ़ी मेरे सर के खून से खिजाब होगी, तेरी दाढ़ी कभी अली अकबर के खून से, कभी अली अकबर के खून से, कभी अली असगर के खून से, कभी अब्बास के खून से खिजाब।